Okay, students, good morning, everyone. Let us start today's class. Good morning, sir. Good morning. First of all, we'll discuss what we have discussed on last lecture. On last lecture, we were discussing concepts related to the FAs, and we were discussing certain examples of FAs as well. So we have discussed an FA that rejects everything. Okay, and from this FA we have learned the concept that to reject everything, either there should be no final state or final state is not reachable from the start state. So this was the concept which we have learned. Another FA which we have discussed, that FA that accepts every string except the null. So except null, everything else should be accepted. Okay, so here we have to reject null. We have learned one concept already, that if we have to accept null, then start state should be the final state. Similarly, reverse of it, this is also true. If we have to reject null, then start state should not be the final state. So to reject null, start state is not the final state. Okay, and other than this, everything was to be accepted. Okay, so we should move away, all other transitions should move away from this start state, and we should move away to a state which is a final state, because everything else has to be accepted. We will move away from this start state. We cannot make this as the final state because we have to reject null. Okay, and we have to accept everything else, so everything else will move to some other state, and that state should be the final state. Only then you can accept everything. Okay, so through these two concepts, we have discussed these two FAs. Then we discussed in general about the FAs and regular expressions, and we have learned that FAs and regular expressions both represent the same class of language, that is known as the regular languages. Okay, so for FA and regular expression, we use these to represent the regular languages. Okay, and then because both are representing the regular languages, then why we need these two different tools? So we have discussed that these two tools are equivalent, meaning thereby corresponding to every given FA there exists a regular expression, and vice versa also. If there exists a regular expression, if there is a regular expression for some language, then corresponding to that we can also make an FA. So in this manner, FA and regular expressions are equivalent, and we say that these are complementary to each other as well, because we have seen that our FAs are like testing tools. So FAs are like testing tools, and regular expressions are generating tools. So meaning thereby, if we are having an input string with us and we wish to test whether this input string is the part of the language defined by the FA or not, so using the FA we can do it very easily, while it is difficult with the help of regular expression. While on the other hand, if we want to generate certain words in the language, then through the regular expression we can easily generate certain words. That is not so easily possible in case of FAs. So that's why we call that FAs are testing tools and regular expressions as the generating tools. Then we have started we have started discussing the design of FAs, and we have discussed one FA that accepts all the words of even length over the alphabet AB. So through this example, we have seen the concept of mutually exclusive state. Okay, so this we have discussed on the last lecture, and today we will continue with the design of FAs. We will discuss another tips for the design, and we will use those tips for designing the FAs. So we'll continue with our discussion. So now move to the next one. So if you look at, this was the last slide where we have left. Okay, so FA that accepts all words of even length, that we were discussing, and for this we have discussed one approach. So this first approach is the most common approach. Okay, so normally people do like this. If we want to check whether length of whether a particular given string is having the length even or odd,
simply we use this particular approach. We count letters starting from the first letter up till the last letter, and we count how many number of letters are there. So we find basically the length of the string, and then we divide that length by 2 and look at the remainder. If remainder is 0, then we say yes, length is even, so string is accepted. Otherwise length is odd and string is rejected. So this is the most common approach we normally use, and we have seen that in this approach we are unnecessarily calculating this length, okay, which it is not required. So this was another smarter approach which is more efficient than the first approach. Here we are using a flag which is initially true, and then we are reading the letter, and each time we read a letter we flip the flag, okay. So if it is 1, it is true, then we make it false, okay. So and this we do throughout the strings, and when our string is finished, if our flag is true, that is flag is 1, then it simply shows that length of the string is even. So we are not calculating the length, but at every moment we are knowing that length of the string read so far is even or odd, okay. So whenever our string finishes, if the length of a string is even, our flag will be 1, otherwise our flag will be 0. So if flag is 1, then it is accepted, else the string is rejected. Now how we have come to this second more efficient approach? The concept to come to this approach was looking at the mutually exclusive possibilities. Here in this FA, you have seen that the important property is the length. Important property of the language is length. We should accept all words of even length. So we will start looking at the mutually exclusive possibilities in terms of length. So we'll make a question in our mind that length of a string over this alphabet, what are the possibilities about the length? So length may be even or length may be odd. Is there any other possibility? No. So there are only two possibilities. Length can either be even or it can be odd. Okay. So what we are doing, we are catching the important property and looking what are the possibilities for that particular property. If we are able to find all mutually exclusive possibilities, then what we'll do, we will make a state corresponding to each such possibility, and we'll call those states as the mutually exclusive states. So in this manner, we have found that there are only two possibilities. Length is either even or odd. So that's why we have made two states, even and odd. Okay. And then obviously the state even will be the final state because we want to accept all words having the even length. Okay, so this even state will be the final state. Now we'll look at which state is the start state. For this we'll look at the possibilities when we have not read anything. When we have not read anything, so how much letters we have read? We have read 0 letters. Okay, so 0 is even. So that's why even will be our start state as well. Okay. So in this manner, we have found how many states will be there in the FA and which state is the start state, which state is the final state. Then we will complete the transitions as per the relationship among those states. So if we are if we are reading a particular string and length of the string read up till now is suppose even, and then we read one more letter, then the length will become odd. So that's why it is suggesting us the transition. If we are in the even state reading a input symbol, either A or B, our length will become odd. So we should move to the state odd. Similarly, if we are, if the length of the input string read so far is odd, meaning thereby we are in the odd state and we are reading one more input symbol, whether it is A or B, doesn't matter. So we are reading one more symbol. So our state will become even because the length of the string read so far will become even. ऑड लेंथ की हमारी ऑड थी हमारी अब तक की जो है जो भी स्ट्रिंग हमने रीड किया था उसकी लेंथ ऑड थी. अगर एक इनपुट सिंबल और रीड कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ इवन हो जाएगी. सो दैट्स व्हाई वी विल मूव टू द इवन स्टेट. सो इन दिस मैनर वी हैव फाउंड द transitions corresponding to it. This is a very important principle which we call as the mutually exclusive state principle. Okay, so and it will be used in a lot many problems. Okay, so you just try to see what are the mutually exclusive property for the
mutually exclusive possibilities for the property on which the language is based. I hope it is clear to everyone up till now. So this was all with what we have discussed up till last lecture. Is it clear, class? Can we move forward? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now we will continue with our design tips, and we will discuss another language in which FA accepts all words starting with the letter A. Starting with the letter A over the sigma, and sigma is again AB, is it? So first of all, we'll try to find what will be the language, what will be the words in this language. So what will be the first word in this language? All words starting with A. So can epsilon be the part of this language? No, epsilon cannot be the part of this language. So the first word will be A, as someone said. Okay, so A. What will be the next word? It may be AA or AB. Is it? Means पहले starting A से होनी चाहिए, उसके बाद चाहे A आए चाहे B आए. इसके बाद अगले वर्ड्स क्या हो सकते हैं? वापस A, AA, AB, ABA एंड ABB. मैं लेंथ वाइज ये वर्ड्स लिख रहा हूँ. अगर आप देखें ये वन लेंथ के वर्ड थे, ये दो ही वर्ड पॉसिबल थे जिनकी लेंथ 2 हो सकती थी, जो A से स्टार्ट होते हैं. देखिए AB अल्फाबेट पे टोटल वर्ड्स जिनकी लेंथ 2 हो सकती है वो कितने होंगे? 4 होंगे. एक A, एक AB, एक BA और एक BB. So among these 4 words which are possible over this alphabet of length 2, only 2 words are part of this language. Other 2 words are not part of this language. Other 2 words are BA and BB. So these are the words which do not start with A. So that's why they are not part of this particular language. In the similar manner, I have found all the words of length 3 which are part of this language. So starting मेरी A से होनी चाहिए, तो A से start हो रहा है देखिए, और आगे क्या आ सकता है? आगे 2 लेंथ का कोई भी वर्ड आ सकता है, AA, AB, BA और BB. बट स्टार्टिंग लेटर इज व्हाट? A. इसी तरह से 4 और वर्ड्स बन सकते थे जो B से स्टार्ट होते, बट चूंकि वो A से स्टार्ट नहीं हो रहे, दैट्स व्हाई दोज वर्ड्स आर नॉट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज. तो इसके बाद कौन सी लेंथ के वर्ड स्टार्ट होंगे? 4 लेंथ के वर्ड स्टार्ट होंगे, like this. And I am not writing those words, so similarly we can find other words in the language. Now I hope that language is clear to everyone. Class, language is clear to everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we come to its regular expression. If we want to write a regular expression for it, can somebody tell me what will be the regular expression for it? A plus B star. Very good. Many of you are telling me A plus B asterisk. Others who could not write it quickly, just discuss how we have found it. अगर आप इस लैंग्वेज के वर्ड्स जैसे मैंने लिखे हैं इसको ध्यान से देखिए. पहला वर्ड मेरा क्या था? A. इसके आगे क्या आया? एप्सिलॉन. इसके आगे क्या आया? एप्सिलॉन. अगले मेरे जो 2 वर्ड्स हैं इनमें पहला लेटर तो A है और दूसरा लेटर क्या है? या तो A या B. इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है. इज इट? सो यानी कि A प्लस B में से कुछ भी आ सकता है. यानी कि क्या आ सकता है मेरा? A प्लस B में से कुछ भी आ सकता है. इज इट? इसके बाद अगले जो 4 वर्ड्स हैं मेरे पास, इसमें पहला लेटर तो A है, लेकिन अगले 2 लेटर्स क्या है? या तो A, AB, BA या BB. यानी A और B पे मिलकर बनने वाले 2 लेंथ के जितने भी वर्ड पॉसिबल हैं वो सारे वर्ड्स आ सकते हैं. यानी कि क्या आ सकता है? A प्लस B टू द पावर 2. इसी तरह से जब मैं 4 लेंथ के सारे वर्ड्स लिखूंगा तो पहला लेटर तो होगा, उसके आगे 3 लेंथ का A और B से बनने वाला कोई भी वर्ड आ सकता है. सो मीन्स व्हाट इट विल कम? A प्लस B टू द पावर 3 एंड सो ऑन सिमिलरली. इज इट? सो यानी कि पहला लेटर तो A होगा, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद A और B पे बनने वाला कोई भी वर्ड आ सकता है, चाहे वो 0 लेंथ का हो, चाहे वो 1 लेंथ का हो, चाहे वो 2 लेंथ का हो, चाहे वो 3 लेंथ का हो, एंड सो ऑन. इज इट? सो फॉर दैट व्हाट वी राइट A plus B asterisk. So in this manner we can find the regular expression corresponding to this FA, A plus B asterisk. This is very simple. Okay, I hope now it is clear to everyone. Then we have to make an FA corresponding to it. Okay,
So whatsoever we have discussed up till now, on the basis of that, we can form an FA corresponding to it. Again मैंने आपसे क्या कहा था कि आप जो है ये देखने की कोशिश करिए कि important property क्या है लैंग्वेज में. So इस लैंग्वेज में important property क्या है? Starting with the letter A. Starting with the letter A. So अगर हम starting किसी भी input string की starting की बात करें जो कि इस अल्फाबेट ए बी के ऊपर बन सकता है, वो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? Either it will start with an A, start with A. So this is one possibility. Another possibility is start with B. So these are two possibilities. इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है क्या? स्टार्टिंग किसी और चीज से हो सकती है क्या? या तो A से स्टार्ट होगा या B से स्टार्ट होगा. Is it? Okay, so what we do, now we make a state corresponding to each of these possibilities. ये हमने इसके corresponding क्या बना ली? स्टेट बना ली. अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप इस स्टेट पे हैं तो इसका मतलब आपकी स्टार्टिंग किससे हुई है? लेटर ए से हुई है. यानी आप एक लेटर ए पढ़ करके इस स्टेट पर पहुंचे होंगे. अगर आप इस स्टेट पे हैं तो इसका मतलब आपने पहला लेटर क्या पढ़ा? बी रीड किया और फिर आप इस स्टेट पे पहुंचे. इज इट? अब एक बार आप सपोज इस स्टेट पे आ गए, यानी स्टार्टिंग विद ए. आपको सक्सेस के लिए क्या चाहिए था? स्टार्टिंग विद ए चाहिए था, वो आपको मिल गया. तो यानी कि आप किस पे होने चाहिए? सक्सेस पे होने चाहिए. सो मीनिंग देयर बाय दिस स्टेट शुड बी द फाइनल स्टेट. अगर स्टार्ट बी से किया तो क्या आप सक्सेस पे हैं? ना, आप सक्सेस पे नहीं है. सक्सेस के लिए आपको क्या चाहिए था? स्टार्ट विद ए. वो नहीं है तो यानी कि ये क्या होगी? एक नॉन फाइनल स्टेट होगी. सो फाइनल स्टेट, नॉन फाइनल स्टेट हमारी पता चल गई. इज इट? उसके बाद फिर अब ये देखते हैं कि अगर मैं एक बार सक्सेस मिल गई मेरे को, यानी कि मैंने ए से स्टार्ट किया, तो क्या मेरी स्टार्टिंग बदल जाएगी? कभी ए से है तो ए से ही रहेगी, यानी कि सक्सेस मिल चुकी तो अब मिल चुकी. अब आगे कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता. इज इट? सो कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता. उसके लिए हम क्या बनाते हैं? ए कॉमा बी, एक सेल्फ लूप. यानी कि वी आर नॉट गोइंग टू लीव दिस स्टेट. सो वी हैव रीच टू द सक्सेस. नाउ वी आर नॉट गोइंग टू लीव दिस सक्सेस, क्योंकि ये क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया पर सक्सेस थी वो क्राइटेरिया बदल नहीं सकता. कुछ भी आगे मेरे को मैं रीड करूँ. सिमिलरली अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेट में हूँ स्टार्टिंग विद बी, ओके, तो कुछ भी मेरा आए इसके बाद, क्या मैं सक्सेस पे पहुंच सकता हूँ? क्या मुझे सक्सेस मिल सकती है? नहीं मिल सकती. क्यों? क्योंकि मुझे सक्सेस के लिए क्या चाहिए? स्टार्ट विद ए. जब बी से स्टार्ट हो गया तो आगे ए आए या बी आए, स्टार्ट कभी भी बदल नहीं सकता. स्टार्ट तो बी से हो चुका. सो दैट्स वाई यू आर नॉट गोइंग टू लीव दिस स्टेट ए कॉमा बी. मीन्स एक बार अगर आप इस स्टेट पे आ गए तो आप कभी सक्सेस पे पहुंच ही नहीं सकते. सो जितने भी आपके स्टेट, चाहे आगे कुछ भी आए, आपका हमेशा क्या होगा? फेलियर होगा. सो दैट्स वाई यू विल रिमेन ऑन दिस स्टेट एंड यू विल फेल. अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों स्टेट्स पे हम पहुंचे कहां से? देयर शुड बी ए स्टार्ट स्टेट. देयर शुड बी ए स्टार्ट स्टेट, क्योंकि पहला लेटर रीड करके हम इन स्टेट पे पहुंचे होंगे. सो पहला लेटर अगर मेरा ए था तो मैं इस स्टेट पे पहुंचा, और पहला लेटर मेरा अगर बी था तो मैं इस स्टेट पे पहुंचा. सो इन दिस मैनर आई कैन डिजाइन दिस FA. इज इट अंडरस्टूड टू एवरीवन? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now we have one more alternative approach. Please repeat it. We have one more alternative approach. In this approach, what I am doing, I am looking Please at. repeat it. Yes, somebody is saying something. Sir, repeat कर दीजिए सर ये डायग्राम. ये डायग्राम देखिए, हमने अभी जो प्रिंसिपल डिस्कस किया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट्स का, हमने क्या किया? अपने प्रॉब्लम में वही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉसिबिलिटीज ढूंढने की कोशिश की. देखिए, FA दैट एक्सेप्ट्स ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर ए. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लैंग्वेज में? स्टार्टिंग विद लेटर ए. लैंग्वेज की प्रॉपर्टी क्या है? स्टार्टिंग विद लेटर ए. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, यानी कि स्टार्टिंग पे मुझे फोकस करना है. सो स्टार्टिंग किससे हो सकती है? कह रहा है ए से होनी चाहिए. अब मैं देखता हूं कि ए से ना हो तो और किस किस चीज से स्टार्टिंग हो सकती है? या तो ए से होगी या फिर बी से होगी. इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी ही नहीं है. और ये दोनों पॉसिबिलिटीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे है? कि अगर ए से स्टार्ट हो गया तो बी से नहीं हो सकता, अगर बी से स्टार्ट हो गया तो ए से नहीं हो सकता. इज इट? सो दीज आर टू पॉसिबिलिटीज विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल. तो यहाँ हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन का जो प्रिंसिपल है वो लग सकता है. म्यूचुअल एक्सक्लूजन के प्रिंसिपल में हम क्या कर सकते हैं? जितनी भी हमारी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉसिबिलिटीज हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक स्टेट बनाते हैं. तो हमने एक स्टेट बनाई
विच इज स्टार्ट विद ए, दूसरी स्टेट बनाई विच इज स्टार्ट विद बी। अब मैं स्टार्टिंग स्टेट से, यानी कि अगर स्टार्ट विद ए हुआ है तो यानी इससे पहले मैंने कोई एक लेटर रीड किया होगा ना ए, तभी तो मैं यहाँ पहुंचाऊंगा। तो ये मेरा पहला लेटर रीड करके मैं यहाँ पहुंच गया। ऐसे पहला लेटर अगर मेरा बी था तो रीड करके मैं कहाँ पहुंचा, इस स्टेट पे पहुंचा। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे जो है इन स्टेट्स के ट्रांजिशंस कंप्लीट करने। अगर एक बार मैं इस स्टेट पे पहुंच गया विच इज अ फाइनल स्टेट एज वेल, फाइनल स्टेट क्यों है, क्योंकि स्टार्टिंग ए से हुई है, सो दैट्स वाई दिस इज द फाइनल स्टेट। यहाँ क्या स्टार्टिंग ए से नहीं हुई है, दैट्स वाई इट इज ए नॉन फाइनल स्टेट। अब अगर मैं एक बार इस फाइनल स्टेट पे पहुंच गया स्टार्ट विद ए, तो चाहे मुझे आगे ए मिले या बी मिले, कुछ भी मिले, मेरी ये प्रॉपर्टी बदल थोड़ी जाएगी कि मेरा स्टार्टिंग ए से हुआ था, इज इट? सो दैट्स वाई आई विल, जो कुछ भी आना है, यानी जो कुछ भी आया आगे, मेरा हमेशा एक्सेप्टेंस ही रहेगा, मेरा वो वर्ड एक्सेप्ट होगा ही होगा। सो ये मेरी ऑलरेडी फाइनल स्टेट है, तो मैं क्या डिसाइड करता हूँ कि आई विल नॉट लीव दिस फाइनल स्टेट। सो दैट्स वाई आई विल मेक सेल्फ लूप ओवर इट कि ए आए तो भी यहीं रहूंगा और बी आए तो भी यहीं रहूंगा। आई विल नॉट लीव दिस स्टेट। सिमिलर कॉन्सेप्ट वी कैन अप्लाई हियर, क्योंकि अगर मेरी बी से स्टार्टिंग हो गई तो अब चाहे आगे ए आए या बी आए, मैं सक्सेस पे नहीं पहुंचने वाला, यानी फेल्योर ही होना है। सो ये स्टेट भी मेरी नॉन फाइनल स्टेट ही है, तो फेल्योर होना तो यहीं पे फेल करते हैं। तो दैट्स वाई वी मेक ए सेल्फ लूप हियर, और यहाँ पे इसको जो है हम बना लेते हैं। तो अब आप देखिए इसके सारे ट्रांजिशन कंप्लीट हो गए। आपकी इस स्टार्ट स्टेट का ए पर भी ट्रांजिशन है, बी पर भी ट्रांजिशन है, इस स्टेट का ए पर और बी पर दोनों पर ट्रांजिशन है, इस स्टेट का भी ए पर और बी पर दोनों पर ट्रांजिशन है। सो दैट्स वाई दिस एफ ए इज कंप्लीट। now it is clear, I think. यस सर। सर एक और क्वेश्चन है बताइए। सर, इसमें ये पूछा गया कि एफ ए दैट एक्सेप्ट्स ऑल वर्ड स्टार्टिंग विद लेटर ए। हाँ, तो सर हम स्टार्ट विद ए को ही स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मान सकते, क्योंकि हमें तो वही स्ट्रिंग्स लेने हैं ना। मतलब सर स्टार्ट विद ए को हमने फाइनल स्टेट माना है, ठीक है। सर इसी को मतलब स्टार्टिंग स्टेट भी तो मान सकते थे, क्योंकि हमें तो वही वर्ड चाहिए जो स्टार्ट कर रहे हैं ए से। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर स्टार्ट विद ए, इस स्टेट को मैं ये वाली स्टेट बनाता ही नहीं। स्टार्ट विद ए, इसी स्टेट को मैं क्या कर लेता हूँ कि जो है स्टार्ट स्टेट भी बना लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट स्टेट बनाया तो सर एप्सिलॉन भी आता फिर इसके अंदर। एप्सिलॉन नंबर वन तो एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो जाएगा, इज इट? जैसा ये कह रहे हैं, तो एप्सिलॉन मुझे एक्सेप्ट कराना है क्या? ना, क्योंकि एप्सिलॉन डजंट स्टार्ट विद ए। पहली गलती तो यहाँ हो जाएगी। दूसरी गलती ये होगी कि आप इस स्टेट के अलावा और कुछ बना ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने इसका यहाँ सेल्फ लूप बनाया। इसका आपने क्या बनाया? यहाँ सेल्फ लूप बनाया ए बी। तो इस स्टेट का तो रेलिवेंस ही खत्म हो जाएगा। यू विल नेवर रीच टू दिस स्टेट, हमेशा इसी स्टेट पर रहेंगे। तो किसका एफ ए बन जाएगा? ए प्लस बी एस्ट्रिक का एफ ए बन जाएगा, इस जिसमें एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट हो रहा है, ए मतलब एंड एवरीथिंग एल्स इज आल्सो कमिंग टू दिस स्टेट, एंड दिस इज अ फाइनल स्टेट। सो एवरीथिंग विल गेट एक्सेप्टेड। इज इट क्लियर? ओके, अभी इसको आप यहाँ छोड़ दो, अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। लेट अस डिस्कस वन मोर अप्रोच फॉर दिस प्रॉब्लम। वो अप्रोच क्या है कि इस अप्रोच में मैं क्या करता हूँ कि मैं सक्सेस पाथ देखने की कोशिश करता हूँ। एफ ए दैट एक्सेप्ट्स ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग विद लेटर ए। तो सक्सेस के लिए मुझे क्या चाहिए? एक पहला लेटर ए चाहिए। दिस इज माई क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस, इज इट और नॉट? सो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या बनाया, एक स्टार्ट स्टेट बनाई। ठीक है, एक स्टार्ट स्टेट। देखिए, अब देखिए मैं कहीं एरो यूज कर ले रहा हूँ, कहीं पे माइनस यूज कर रहा हूँ, मगर आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां भी मैं एरो यूज कर रहा हूँ वहां मैं डबल सर्किल यूज कर रहा हूँ फाइनल स्टेट के लिए। जहां भी मैं माइनस यूज करूंगा वहां प्लस यूज करूंगा फाइनल स्टेट के लिए। आप भी सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है रखिएगा, कोई भी एक नोटेशन यूज करिएगा, नोटेशंस को मिक्स मत करिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, सो स्टार्ट स्टेट है, मुझे सक्सेस के लिए क्या चाहिए? एक ए चाहिए। फर्स्ट लेटर ए अगर मेरे को मिला, then I will reach to some state and that state will be the final state. Is it or not? इतना क्लियर है? अब Yes, देखिए, sir. इस ए को मैं यहीं पे नहीं ले सकता था। क्यों? क्योंकि यहीं पे अगर इस ए को मैं लेता तो मेरा नल भी और उसके बाद इसको फाइनल स्टेट बनाता तो मेरा नल भी एक्सेप्ट हो जाता। नल मुझे एक्सेप्ट नहीं कराना है, इज इट? सो दैट्स व्हाई ऑन ए आई हैव टू मूव अवे फ्रॉम दिस स्टार्ट स्टेट। सो दिस इज द सक्सेस पाथ। तो मैंने क्या ड्रॉ किया? अपना सक्सेस पार्ट ड्रॉ किया। मैं देखा सक्सेस के लिए मुझे क्या चाहिए? माई वर्ड शुड स्टार्ट विद ए। तो स्टार्टिंग स्टेट से पहला लेटर मेरे को ए मिला, सो आई हैव रीच टू दी सक्सेस। नाउ क्वेश्चन इज, इफ आई हैव रीच टू दी सक्सेस, कैन आई लीव दिस कैन आई लीव दिस स्टेट? नो। जैसे कि मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट आपको बताया था, एक बार सक्सेस मिल गई आपको, यानी कि ए से स्टार्टिंग होगी, तो अब इस फैक्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता।
आगे कोई भी लेटर आए, आगे आने वाला कोई भी लेटर ये चेंज नहीं कर सकता कि पहला लेटर ए से बदल करके कुछ और हो जाएगा, इज इट? सो दैट्स वाई ऑन ए और बी आई विल रिमेन हियर। यानी कि एक बार मैं सक्सेस स्टेट पे पहुंच गया ना, एक बार मेरी ए से स्टार्टिंग होगी, फिर आगे कुछ भी आए आई एम नॉट वरीइंग, आई विल रिमेन एट दिस स्टेट एंड माई दैट स्ट्रिंग विल गेट एक्सेप्टेड, इज इट? तो मेरा सब जो मुझे चाहिए था उस, यानी कि सारे एक्सेप्ट होने वाले स्ट्रिंग यहाँ से शुरू होंगे, इस पाथ को फॉलो करेंगे और इस जगह पे जो है इस स्टेट पे टर्मिनेट करेंगे इस लूप के थ्रू, इज इट? अब क्वेश्चन ये क्या मेरा ये एफ ए कंप्लीट है? एफ ए कंप्लीट नहीं है अभी, ओके? क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि इस स्टेट का तो ए और बी के दोनों ट्रांजिशन हैं, बट इस स्टेट का केवल ए ट्रांजिशन है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं सक्सेस पाथ से बनाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि जो मेरे इनकम्प्लीट ट्रांजिशन हैं उनको कंप्लीट करना। तो इस स्टेट का ए पर तो ट्रांजिशन है, बी पर नहीं है। सो लेट अस एग्जामिन, अगर इस स्टेट में, स्टार्ट स्टेट में मेरे को बी मिलता तो क्या होता? अगर बी मिलता तो मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि मैं इसी पर लूप करूं, इसी पर लूप करूं, बल्कि पहली पॉसिबिलिटी क्या है, मैं इस सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ूं, यानी कि ऑन बी ऑल्सो आई मूव ऑन दिस सक्सेस पाथ। क्या ये पॉसिबल है क्लास? ऑन बी आई विश टू मूव ऑन दिस सक्सेस पाथ, क्या ये पॉसिबल है? नो सर। क्यों 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 पॉसिबल नहीं है? यस, पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि बी पर मुझे सक्सेस नहीं मिले। सक्सेस के मुझे क्या चाहिए? ए चाहिए। ए मिलेगा तभी मैं सक्सेस पाथ पे बढ़ूंगा, अगर बी मिलेगा तो मैं सक्सेस पाथ पे नहीं बढ़ सकता। तो पहली पॉसिबिलिटी तो खत्म होगी, सक्सेस पाथ पे मैं आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? मैं लूप करूं, यानी कि इसी स्टेट पे स्टे करूं और इंतजार करूं कि मुझे ऐसा कुछ मिले कि जिससे मैं सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ पाऊं। तो क्या बी पे मैं सेल्फ लूप लगा सकता हूं क्लास? बी पे क्या मैं सेल्फ लूप लगा सकता हूं? यस, somebody was saying something. बी पे क्या सेल्फ लूप लगा सकते हैं? सर बी पे शायद नहीं, क्योंकि सर हमें स्टार्टिंग तो ऐसे ही करनी है ना। यस, बी पर हम सेल्फ लूप नहीं लगा सकते। ये हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी थी। बी पे सेल्फ लूप लगाएं, इंतजार करें, यानी कि जहां है वहीं रहे, सक्सेस पाथ पे तो नहीं बढ़े, लेकिन जहां हैं वहीं रहें और इंतजार करें कि आगे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम सक्सेस पाथ पे बढ़ सकें। तो अगर मैं बी पे यहीं लूप करूंगी, जब तक मुझे बी मिलता रहे मैं इसी स्टेट पे मौजूद रहूं और जैसे ही मुझे ए मिले आगे बढ़ जाऊं, क्या ऐसा पॉसिबल है? ना, क्योंकि ए मुझे बीच में कहीं नहीं चाहिए, ए मुझे पहला लेटर चाहिए, इज इट? तो अगर पहले इस ए से पहले अगर कोई बी आ चुका है, सो नाउ दिस ए इज नॉट द फर्स्ट लेटर, सो इसलिए बी पे सेल्फ लूप भी नहीं लगा सकता। क्योंकि अगर बी आया और उसके बाद ए आया तो मैं इस सक्सेस पाथ को फॉलो नहीं कर सकता। इस सक्सेस पाथ को मैं कब फॉलो कर रहा हूं? जब मैं स्टार्टिंग स्टेट पे हूं और मुझे पहला लेटर ही ए मिल रहा है। इज इट क्लियर? तो दैट्स वाई बी पर मैं सेल्फ लूप नहीं लगाऊंगा। तो यानी कि अब ना तो मैं सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ सकता, ना इस पे स्टे कर सकता। तो क्या करूंगा? इससे अवे जाऊंगा, इससे अवे जाऊंगा, मगर सक्सेस पाथ से भी अवे जाऊंगा। तो मीन्स एक नया पाथ क्रिएट होगा जिसको मैं कहता हूं ऑन बी, यानी कि मैं किसी और स्टेट पर मूव करूंगा, मैं किसी और स्टेट पर मूव करूंगा। यानी कि अगर पहला लेटर मेरा ए है तो मैं सक्सेस पाथ को फॉलो कर रहा हूं, पहला लेटर अगर मेरा बी है तो मैं इस पाथ को फॉलो कर रहा हूं और इस स्टेट पे पहुंच रहा हूं। अब ये स्टेट क्या है? अगर पहला मेरी स्टार्टिंग बी से हुई है तो यानी कि मैं सक्सेस पाथ से तो अवे चला गया, और ऑब्वियस सी बात है ये मेरी सक्सेस भी नहीं है। क्या मैं सक्सेस पे कभी पहुंच सकता हूं यहां से? ना, कभी नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि पहला लेटर मुझे सक्सेस के लिए चाहिए था, ए चाहिए था। नहीं, केवल इस पाथ को फॉलो करूंगा तभी मुझे सक्सेस मिलेगी। इस पाथ पे आ गया तो मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है। यानी कि अब आगे कुछ भी आए मेरा स्ट्रिंग रिजेक्ट होना ही होना है। एक बार अगर बी से स्टार्टिंग हो गई तो मेरा स्ट्रिंग रिजेक्ट होना ही होना है। तो चाहे सिंगल बी है तो भी रिजेक्ट होना है, उस सिंगल बी के बाद एक ए आ गया तो भी रिजेक्ट होना है, उसके बाद एक बी आ गया तो भी रिजेक्ट होना है, एक ए बी आ गया तो भी रिजेक्ट होना है, बी ए आ गया तो भी रिजेक्ट होना है, बी बी आ गया तो, मीन्स व्हाटसएवर स्ट्रिंग कम्स, यानी कुछ भी आए मेरा स्ट्रिंग रिजेक्ट ही होना है। यानी कि मैं इसी स्टेट पे रहूंगा एंड इट इज ए नॉन फाइनल स्टेट एंड माय स्ट्रिंग विल गेट रिजेक्टेड। सो नाउ यू कैन सी दैट द सिमिलर डिजाइन आई हैव मेड, सो बोथ डिजाइंस आर सिमिलर। ये आपने पहले कॉन्सेप्ट से बनाया था, ये आपने दूसरे कॉन्सेप्ट से बनाया। सो ये पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहलाता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट का कॉन्सेप्ट कहलाता है। दूसरा स्टेट क्या कहलाता, दूसरा ये प्रिंसिपल क्या कहलाता है? सक्सेस पाथ का प्रिंसिपल कहलाता है। सो ये एग्जाम्पल मैंने पर्टिकुलर इसीलिए लिया सो दैट आई कैन शो यू कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो आप, एक प्रॉब्लम को बनाने का कोई एक तरीका हो ये जरूरी नहीं है, मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं। उन मल्टीपल मेथड से आपका सेम डिजाइन भी निकल के आ सकता है,
अलग अलग डिजाइन भी निकल के आ सकते हैं, लेकिन अगर आपकी मेथडोलॉजी करेक्ट है तो चाहे डिजाइन भले ही अलग भी होंगे तो भी ठीक होंगे, और वरना तो सेम डिजाइन निकल करके आएंगे, जैसा कि इस केस में आप देख रहे हैं कि सेम डिजाइन निकल के आया है। सो व्हाट वी डू, वी से दैट इसमें हमने क्या किया, वी क्रिएटेड ए स्टार्ट स्टेट, सबसे पहले स्टार्ट स्टेट से शुरू करें एंड ट्राई टू सी व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए मुझे क्या चाहिए था, पहला लेटर ए चाहिए था। ओके, सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव ड्रॉन ए सक्सेस पाथ। ओके, देन वी ड्रॉ, जो हमने सक्सेस पाथ ड्रॉ किया, देन वी ट्राई टू कंप्लीट द रिमेनिंग ट्रांजिशंस ऑफ एफए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंग्वेज। जो भी हमारी लैंग्वेज की प्रॉपर्टी थी उसके अकॉर्डिंग मैंने बाकी ट्रांजिशंस कंप्लीट किए। इज इट? So this is another methodology by which you can design your FAs, and these two are very important methodologies. अगर आप इन दोनों को ध्यान रखेंगे, फॉलो करेंगे, सो जितने भी आपकी FA की प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें से 90% प्रॉब्लम्स यू विल बी एबल टू सॉल्व करेक्टली यूजिंग एनी ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स। ओके, बाकी कुछ प्रॉब्लम्स ट्रिकी भी होती हैं, कुछ अलग कॉन्सेप्ट भी लगेंगे, कुछ अलग चीज़ें भी होंगी, बट मेजरली अगर आप इन दो कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखें अलॉन्ग विद ऑल दोज कॉन्सेप्ट विच वी हैव डिस्कस्ड बिफोर इट, जैसे कि अगर मुझे नल एक्सेप्ट कराना है तो स्टार्ट स्टेट फाइनल स्टेट होनी चाहिए। इज इट? अगर मुझे सब कुछ एक्सेप्ट करना है तो मेरी सारी स्टेट फाइनल स्टेट होनी चाहिए। अगर मुझे सब कुछ रिजेक्ट कराना है तो या तो मेरी कोई स्टेट फाइनल स्टेट नहीं होनी चाहिए, या फाइनल स्टेट है तो वो रीचेबल नहीं होनी चाहिए स्टार्ट स्टेट से। सो ऑल दोज बेसिक कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड अलोंग विद दीज टू डिजाइन प्रिंसिपल्स, यू विल बी एबल टू मेक ऑलमोस्ट 90% ऑफ योर FAs। बचे हुए जो 10% है उसके लिए डिफरेंट ट्रिक्स हैं, बाकी थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आप लोगों को पता चल जाएगा। अब ये भी जो दोनों जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बनाए, दीज कॉन्सेप्ट्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ओके, सो दीज आर माई ओन कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट किसी बुक में दिए हुए हैं या किसी जो है ने इसको ऑथर किया है, ये सिंपल अपने एक्सपीरियंस और अपने जो है ऑब्जर्वेशन पे हैं। तो जैसे मैंने बनाए हैं इसी तरह से somebody else may create his own concept, may create his own design concepts. So हर व्यक्ति का methodology, thinking methodology different होती है। So I am not saying that कि you always use these concepts. You can use anything which is comfortable to you, जो जिससे भी आप आसानी से डिजाइन कर पाए, जिस वे में भी आपको आसानी होती है। Is it? So now it is clear? Up till now it is clear, class? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now we'll move further, take another example of FA. So up till now we have learned two concepts, mutually exclusive states and success path. तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अब इसमें से कौन सा कहाँ यूज होगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे अभी पिछली प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाया कि दोनों भी यूज हो सकते हैं, बट देयर विल बी सर्टेन प्रॉब्लम्स जहाँ पे सपोज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट लगेगा बट सक्सेस पाथ नहीं लगेगा। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जहाँ सक्सेस पाथ लगेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट नहीं लगेगा, या दोनों लग रहे होंगे तो कोई एक आसानी से लगता होगा, कोई दूसरे में मुश्किल होती होगी। सो दिस यू हैव टू लुक एट कि आप जो है कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं। नाउ प्रॉब्लम इज FA that accepts all words over sigma that contain a triple letter, either triple A or triple B, यानी A B, this is your alphabet। और इसमें आपको ऐसे वर्ड्स जो है एक्सेप्ट करने हैं जिनमें कहीं ना कहीं कम से कम एक ट्रिपल ए या ट्रिपल बी, या हो सकता है दोनों भी हों। जब मैं और कहता हूं, जब भी जहां FA में और लिखा होगा आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट assumptions यू आर टेकिंग। और दो तरह का हो सकता है, एक तो इंक्लूसिव और एक एक्सक्लूसिव और। इंक्लूसिव और में क्या है कि या तो पहला या दूसरा या दोनों, यह है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और क्या है कि या तो पहला या दूसरा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। इज इट? तो नॉर्मली वेन एवर वी राइट और वी मीन inclusive or. Okay, so FA that accepts all words over sigma that contains a triple, either a triple A or triple B in them. Is it? अब क्वेश्चन ये सबसे पहले कि इसमें लैंग्वेज में वर्ड कौन कौन से होंगे। सो ऑब्वियसली बात है ट्रिपल ए ट्रिपल बी है, तो कम से कम जो लेंथ होगी किसी भी वर्ड की इस लैंग्वेज में क्या होगी, मिनिमम लेंथ ऑफ एनी वर्ड इन दिस लैंग्वेज विल बी व्हाट, 3, क्योंकि ट्रिपल ए और ट्रिपल बी तो आएगा ही आएगा। सो दीज आर द बेसिक वर्ड्स इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। उसके बाद क्या है, सपोज मैं ट्रिपल ए वाले को ले लेता हूँ,
इससे पहले कुछ आ सकता है, यस इससे पहले कुछ आ सकता है। पहले कुछ क्या आ सकता है, एप्सिलॉन, अगर एप्सिलॉन आएगा तो ट्रिपल ए हो जाएगा। दूसरा क्या है, सिंगल ए आ सकता है, ओके, देन उस केस में आपका वर्ड क्या हो जाएगा, 4 एज, ठीक है। इसी तरह से अब जो है शुरू में क्या आ सकता है, बी आ सकता है, उस केस में आपका वर्ड क्या हो जाएगा, बी ट्रिपल ए, इज इट। इसी तरह से शुरू में क्या आ सकता है, डबल ए भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, बी ए भी आ सकता है, डबल बी भी आ सकता है। तो इस तरह से 4 वर्ड और बन जाएंगे आपके, इज इट। इसी तरह से जैसे आप स्टार्टिंग में लगा रहे हैं वैसे ही लास्ट में भी लगा सकते हैं कि ट्रिपल ए पहले आया उसके बाद कुछ आ जाए। अगर ट्रिपल ए के बाद एक सिंगल ए आया तो अगेन ये 4 ए बनेंगे। अगर एक बी आया तो क्या बनेगा, ट्रिपल ए बी, ट्रिपल ए बी बनेगा। उसका 2 लेंथ के कोई भी वर्ड आ सकते हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है कि कुछ इधर आया लेफ्ट में और कुछ इसके राइट में आया। इस तरह से मल्टीपल वर्ड्स आर पॉसिबल। Is it clear? So what words will be there in the language? You will be able to write if you systematically do make all the combinations lengthwise, then you will be able to write all the words. और जैसा आप ट्रिपल ए के लिए कर रहे हैं वैसा ही आप क्या कर सकते हैं, ट्रिपल बी के लिए भी कर सकते हैं कि इसके लेफ्ट में कुछ आएगा, इसके राइट में कुछ आएगा, उससे जो भी वर्ड्स बनेंगे those words you will be able to write here. Is it? So in this manner we can write the words in this particular language. Now I hope you have understood what kind of words will come in this language. So we can find a pattern. If we can find a pattern, we can easily write a regular expression. So can you tell me what will be the regular expression corresponding to it? Double A plus B asterisk. Double A plus B asterisk. No, it is not. Anyone else? ट्रिपल ए ट्रिपल ए, ट्रिपल ए, ट्रिपल ए प्लस ट्रिपल बी तो होगा। यस यस सर, क्योंकि या तो ये आएगा या ये आएगा, इज इट, दोनों में से कोई एक तो आएगा ही आएगा कम से कम, ठीक है। उसके बाद अब ट्रिपल ए आया या ट्रिपल बी आया, उसके लेफ्ट में कुछ आ सकता है, उसके राइट में कुछ आ सकता है। उसके लेफ्ट में क्या आ सकता है, एनीथिंग A plus B asterisk. ए प्लस बी का स्टार। इसी तरह से इसके राइट में क्या आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ए प्लस बी asterisk, is it? So this will be the regular expression corresponding to it. मैंने क्या कहा, या तो एक ट्रिपल ए या ट्रिपल बी। अब चूंकि यहाँ मैंने ए प्लस बी स्टार लिखा है, अब आप कहोगे ये तो एक्सक्लूसिव और हो गया, या तो ट्रिपल ए आएगा या ट्रिपल बी आएगा, दोनों में से कोई एक ही तो आएगा, इज इट। सपोज ट्रिपल ए आया, लेकिन अब इस ए प्लस बी एस्ट्रिक की वजह से यहाँ ट्रिपल बी नहीं आएगा, ये गारंटी कौन करेगा, कोई नहीं कर सकता। तो हो सकता है इस ट्रिपल ए से पहले मैं कैश इस ट्रिपल ए को कर रहा हूँ, बट इस ए प्लस बी स्टार से कहीं ट्रिपल बी जनरेट हो गया हो, इट इज ऑल्सो पॉसिबल, इज इट। इसी तरह से इस ए प्लस बी स्टार में कहीं एक बार और ट्रिपल ए आ गया हो, इज इट ऑल्सो पॉसिबल। सो मैंने क्या कहा था कि कम से कम एक ट्रिपल ए या ट्रिपल बी इस वर्ड के अंदर जरूर होगा। अब हो सकता है इस ए प्लस बी एस्ट्रिक से या इस ए प्लस बी एस्ट्रिक से कहीं भी ट्रिपल ए या ट्रिपल बी ना जनरेट होता हो, तो उस केस में इन दोनों में से एक तो होगा ही होगा, इज इट। सो माई वर्ड विल गेट एक्सेप्टेड, is it okay or not? Understood how we have found this regular expression? Simply we are looking at success path. Okay, ट्रिपल ए या ट्रिपल बी होना चाहिए, उसके उससे पहले कुछ भी आए, उसके बाद कुछ भी आए, यानी कि एक ट्रिपल ए या ट्रिपल बी में से कुछ मिला, उससे पहले कुछ भी आए, उसके बाद कुछ भी आए। और जब भी मैं कहता हूं कुछ भी, उसका मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन के केस में क्या होता है, ए प्लस बी एस्ट्रिक, इज इट। और अगर मैं एफ ए के केस में कहता हूं तो क्या होता है, एक सेल्फ लूप उस स्टेट पे, अगर मैं कहता हूं कि इसके बाद कुछ भी आए, इज इट। सो रेगुलर एक्सप्रेशन इज क्लियर? यस सर। ओके, नाउ वी Yes, कम sir. टू द डिजाइन ऑफ एफ ए। We come to the design of FA. Now, somebody of you tell me what I should use. I should try to see the mutually exclusive states, or I should try to see success path. सक्सेस पास। सक्सेस पाथ क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट देखने की कोशिश करिए, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी, ठीक है। अब ट्रिपल ए आएगा, ट्रिपल बी आएगा, दोनों भी आ सकते हैं, इज इट। अब इसमें मुझे कहीं ये नहीं दिखाई दे रहा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेट्स क्या होंगी, कि ट्रिपल ए आया तो फिर अदर वर्ड्स क्या आ सकते हैं, कि और क्या आ सकते हैं, डबल ए भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, एंड कहाँ से होगी, कहीं कोई ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या चीज़ नहीं मिल रही। तो आई एम नॉट इजीली एबल टू सी that कि something which is mutually which I can call as the mutually exclusive property
या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉसिबिलिटी, वो मुझे यहाँ कहीं दिख नहीं रही, बट सक्सेस पाथ मुझे आसानी से दिख रहा है। सक्सेस के लिए मुझे क्या चाहिए, आई विल स्टार्ट विद द स्टार्ट स्टेट। सक्सेस के लिए मुझे क्या चाहिए, ट्रिपल ए। ओके, तो एक ए मिला, किसी स्टेट पे पहुंचा, दूसरा ए मिला, किसी तीसरी स्टेट पे पहुंचा, और तीसरा ए मिला, किसी चौथी स्टेट पे पहुंचा। अब चूंकि मुझे 3 कंसेक्यूटिव ए मिल गए, तो मेरी ये स्टेट क्या होनी चाहिए, फाइनल स्टेट। सक्सेस के लिए मुझे क्या चाहिए था, एक ट्रिपल ए चाहिए था, तो मुझे क्या हो गया, 3 ए लगातार मिले, तो ये मेरी स्टेट क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट। इज इट क्लियर? सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव ड्रॉन ए सक्सेस पाथ। इज इट? अब लेकिन यहाँ केवल एक सक्सेस पाथ नहीं है, जैसे पिछली वाली प्रॉब्लम में जब हमने देखा था वहां केवल एक ही सक्सेस पाथ था, बट यहाँ मेरे पास 2 सक्सेस पाथ हैं, या तो ट्रिपल ए, दूसरा पाथ क्या है, ट्रिपल बी। ओके, अब मुझे ट्रिपल बी वाला भी सक्सेस पाथ बनाया, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक कॉमा बी और कॉमा बी लगा दूं, तो क्या ये ट्रिपल बी वाला सक्सेस पाथ बनेगा? जस्ट टेल नहीं मी। सर, नहीं सर बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सर, उस क्योंकि केस बीच में में भी आ सकता है ना कहीं भी। यस उस केस में ए और बी मिक्स हो जाएंगे। जैसे मैं लिखता हूं ए कॉमा बी एंड ए कॉमा बी। अब इसमें क्या हुआ, ट्रिपल बी आ तो सकता है कि पहले ए इससे बी आया, इससे बी आया, इससे बी आया, लेकिन ये गारंटी नहीं है। जब मेरा केवल ए था तो गारंटी थी ट्रिपल ए आ रहा, इज इट? लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ बी लिखा, तो अब हो सकता है पहली बार में ए आए, अगली बार में बी आए, उससे अगली बार में फिर ए आ जाए, तो ये क्या आया, ए बी ए। इज इट? सो ना तो ट्रिपल ए आया ना ट्रिपल बी आया, फिर भी मैं सक्सेस पे पहुंच गया। सो दिस शुड नॉट हैपन। तो जहां कहीं भी मैं ए और बी लिखता हूं और कंटिन्यूशन में लिखता हूं, तो वहां क्या है, ए और बी आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो अगर मुझे सेपरेट रखने हैं, तो उनके पाथ क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। सो लेट मी इरेज इट। ओके, so triple A, this path is there. Now I have to draw another path for triple B. So triple B के लिए मैंने path बनाया B and then B and then B, और चूंकि ये भी मेरा सक्सेस पाथ है, तो यानी कि इसके बाद मैं जिस स्टेट पे पहुंचूंगा, दैट स्टेट विल आल्सो बी ए फाइनल स्टेट। अब आप कहेंगे यहाँ 2 डिफरेंट फाइनल स्टेट हो गई, तो हो सकती है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, फाइनल स्टेट्स इन योर एफए मे बी मोर देन 1 एज वेल। हो सकता है कोई फाइनल स्टेट ना हो सकता है एक ही फाइनल स्टेट हो सकता है एक से ज्यादा फाइनल स्टेट हो। ओके, इज इट? सो यहाँ मेरी ये 2 फाइनल स्टेट हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि चाहे इस पाथ से मैं फाइनल स्टेट पे पहुंचा, चाहे इस पाथ से मैं फाइनल स्टेट पे पहुंचा, अगर एक बार यहां पहुंच गया, तो क्या यहां से दूर जा सकता हूं? एक बार मुझे ट्रिपल ए मिल गया, तो मिल गया ना। अब आगे कुछ भी आए, क्या ये फैक्ट चेंज हो सकता है कि एक ट्रिपल ए आ चुका है? जस्ट नहीं सर, नहीं चेंज हो सकता ना। यानी कि ये सक्सेस जो मुझे मिली है, ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता अब, आगे कुछ भी आए। इज इट? तो यानी कि आगे ए या बी कुछ भी आए, मेरी सक्सेस बनी रहेगी। इसका मतलब मुझे उसी स्टेट पर रहना है। इज इट ओके? सिमिलरली अगर ट्रिपल बी के थ्रू मैं यहां पहुंच गया, तो इसके बाद आगे कुछ भी आए, मुझे वहीं पे बने रहना है। अगर एक बार मुझे सक्सेस मिल गई है, तो मेरी सक्सेस ये पक्की है। ओके, मैं यहीं पे बना रहूंगा। इज इट क्लियर? सो ये कंप्लीट हुआ। अब अब मैं क्या करूंगा, मेरे देखिए दोनों सक्सेस पाथ बन गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक एक करके ट्रांजिशंस कंप्लीट कर रहा हूं। अब आप देखें, इस स्टेट के ए पर भी ट्रांजिशन है, बी पर भी ट्रांजिशन है, यानी इस स्टेट के सारे ट्रांजिशन कंप्लीट है, तो इस स्टेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कम ऑन दिस स्टेट। अगर मैं इस स्टेट पर हूं, तो क्या इसके सारे ट्रांजिशन कंप्लीट हैं? देखिए, ए पर तो मैं इधर गया, लेकिन बी मिलेगा तो कहां जाऊंगा? मुझे पता होना चाहिए ना कि अगर इस स्टेट में बी मिला तो कहां जाऊंगा। दैट इज नॉट नोन। सो आई मस्ट एनालाइज कि अगर इस स्टेट में मुझे बी मिला, तो वेयर आई शुड मूव। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा कि व्हेनेवर यू डिजाइन एन एफए, ईच स्टेट इन एफए हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान से सुनिएगा, ईच स्टेट in FA has a responsibility and you have to identify that responsibility. If you are able to correctly identify the responsibility of the state, always your designs will be correct. अगर आप उन responsibilities को state की correctly identify नहीं कर पाएंगे, then your design may be wrong.
अब क्वेश्चन ये है कि इस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप देखिए इस स्टेट पे मैं कैसे पहुंचा, स्टार्टिंग स्टेट से एक ए रीड करके पहुंचा, यानी कि लास्ट लेटर जो मैंने रीड किया है दैट इज एन ए, दैट इज एन ए। इज इट क्लियर? सो मैं इसको यहां लिख देता हूं 1A, जस्ट फॉर माई आइडेंटिफिकेशन। मैंने जैसे आपको कहा था कि जब मैं एफ डिजाइन कर रहा हूं या एफ बना रहा हूं, मुझे स्टेट्स को नाम देने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं पे नाम देने की आवश्यकता पड़ती है तो इस वजह से, सो दैट आई कैन इजिली आइडेंटिफाई दोज स्टेट्स की व्हाट वर्क दोज स्टेट्स आर डूइंग। तो अगर मैं नाम दे रहा हूं उन स्टेट्स को तो कुछ ऐसे नाम देने चाहिए जो कि रेलिवेंट नेम्स हों। इज इट? बल्कि इसको मैं स्मॉल ए ना लिख करके कैपिटल ए लिखता हूं, ठीक है, ताकि मैं इनपुट अल्फाबेट से कंफ्यूज ना करूं। सो 1A, यानी कि इस स्टेट पे होने का मतलब क्या है, आई हैव रिसेंटली रेड एन ए। ओके, अब मुझे एक ए मिल गया, सक्सेस के लिए क्या चाहिए, 2A और चाहिए। अगर मुझे 2A और मिल गए इसके बाद तो आई विल रीच टू दी सक्सेस। लेकिन अगर वो 2A नहीं मिले तो कहीं और जाना पड़ेगा, सक्सेस से तो हटना पड़ेगा ना मेरे को। ओके, सो अगर मुझे अगला ए मिला तो आई विल रीच हेयर, लेकिन अगला ए नहीं मिला, अगला लेटर मुझे बी मिला, सो वेयर आई शुड मूव। देखिए यहां अगेन वही पॉसिबिलिटीज है, सक्सेस पाथ पे बढ़ सकता हूं ना, नहीं बढ़ सकता, क्योंकि सक्सेस पाथ पे बढ़ने के लिए मुझे एक ए चाहिए। दूसरी पॉसिबिलिटी, यहीं पे स्टे कर सकता हूं, यहीं पे स्टे कर सकता हूं क्लास। अगर मैं यहीं पे स्टे करूं तो क्या नो होगा, सर, नो सर। नो सर। देखिए यह इस पॉसिबिलिटी क्या है, आई हैव रिसेंटली रेड एन ए। अगर मैं बी का एक लूप यहां बना देता हूं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं इस ए को रीड करके यहां आया था, उसके बाद कोई बी आ गया, उसके बाद यहां हूं, तो यानी कि लास्ट लेटर रेड तो मेरा बी हो गया बजाय ए के। और उसके बाद अगर मुझे 2A मिल गए तो मुझे क्या मिलेगा, BAA मिलेगा, और मैं सक्सेस पे पहुंच जाऊंगा, जबकि मुझे ट्रिपल ए पे पहुंचना चाहिए। इज इट? तो यानी कि बी इसके बीच में मिक्स हो जाएगा। इज इट? तो यानी कि मुझे बी पे सेल्फ लूप भी नहीं रखना। इस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आई हैव रेड द लास्ट लेटर ए। सो अगर लास्ट लेटर रेड बी है तो मुझे यहां नहीं रहना चाहिए, कहां जाना चाहिए, कहीं और जाना चाहिए। अब अगेन दो पॉसिबिलिटी है। अब आप देखिए आपके पास कुछ और स्टेट्स भी हैं। देखिए इस सक्सेस पाथ पे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, बट यू हैव अनदर सक्सेस पाथ जिसमें कि बीज आ रहे हैं आपके। आप देखिए इस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एक बी अगर आपको मिला तो, अगर मान लीजिए शुरू का लेटर आपको ए नहीं मिलता, बी मिलता, तो आप कहाँ आते, इस जगह पे आते। इस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, 1B, मीन्स यू हैव रिसेंटली रेड ए बी, यू हैव रिसेंटली रेड ए बी। अगर अब आपको 2 कंसेक्यूटिव बीज मिल जाए तो भी आपको सक्सेस मिल जाएगी। इज इट और नॉट? 2 कंसेक्यूटिव बीज मिल जाए तो भी आपको सक्सेस मिल जाएगी। अब यहाँ आप सपोज 1A पर थे, एक ए रीड किया, अगला ए नहीं मिला, बी मिल गया, तो एक बी हो गया ना आपका। अगर 2 बी और मिल गए तो सक्सेस मिल सकती है। अगर इस 1A के बाद एक बी रीड किया, उसके बाद 2 बी और आ गए तो सक्सेस मिल सकती है ना। इज इट? सो Yes, दैट्स yes, व्हाई sir. आई विल Yes, sir. मूव ऑन दिस स्टेट, ऑन बी आई विल मूव ऑन दिस स्टेट। तो यानी कि मेरी ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग स्टेट है जो वही काम कर रही है। यानी कि एक बी पढ़ने के बाद मुझे कहाँ होना चाहिए, एट 1B। ओके, सो दैट्स व्हाई आई विल मूव हियर। अब नो मैटर कि मैं डायरेक्टली एक बी रीड करके यहाँ आया या एक बार एक ए रीड करके उसके बाद बी रीड करके आया, क्योंकि देखिए ए जैसे ही मुझे इस स्टेट में बी मिला तो मेरा ए वाला पाथ तो खत्म हो गया। अब मुझे ट्रिपल ए तो नहीं मिल रहा, तो अब लेकिन ट्रिपल बी मिल सकता है स्टिल। सो दैट्स व्हाई आई विल स्विच ऑन द पॉसिबल पाथ। तो 1B की रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे थी भाई, यहाँ चाहे इधर से आया चाहे इधर से आया, मैं एक बी रीड करके आया, यानी कि इस स्टेट में होने का मतलब क्या है कि आई हैव रिसेंटली रेड एन बी। सो इस स्टेट का मतलब रिसेंटली रेड एन ए, इस स्टेट का मतलब रिसेंटली रेड ए बी। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि अब यहाँ पे मैं 1A पे था, एक ए रीड किया था, बी नहीं मिला मुझे, सपोज ए मिल गया तो मैं यहाँ पहुँच गया। यानी कि इस स्टेट पे होने का मतलब क्या है, मुझे 2 कंसेक्यूटिव एज मिल चुके हैं। आई विल राइट 2A हियर। सो यानी कि इस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई कि अगर मुझे 2 लगातार ए मिले हैं तो मुझे इस स्टेट पे होना चाहिए। इज इट? तो यानी कि इस स्टेट पे अगर मैं आया हूं तो इसका मतलब क्या है, मुझे लगातार 2A मिल चुके हैं। अब अगर तीसरा ए मिला तो सक्सेस, लेकिन अगर तीसरा ए नहीं मिला, बी मिल गया, तो ये पाथ खत्म हो गया, ये दोनों ए बेकार हो गए ना, क्योंकि तीसरा ए नहीं मिला। अगर तीसरा ए मिल जाता तो सक्सेस थी, लेकिन जैसे ही यहाँ बी मिला आपको तो ये पाथ तो खत्म हो गया, पहले वाले दोनों ए बेकार हो गए। अब आपने रिसेंटली क्या रीड किया है, एक बी रीड किया है, और एक बी रीड करने के बाद आपको कहाँ होना चाहिए, एक बी रीड करने के बाद आपको कहाँ होना चाहिए, क्लास।
1B. ये ए वाला पाथ खत्म हो जाएगा, सक्सेस पाथ जो ए से शुरू होगा। यस, यू विल बी ऑन 1B, यू विल बी ऑन 1B। क्यों? क्योंकि अब ये वाला पाथ तो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस पाथ को आप आगे फॉलो नहीं कर सकते, ए नहीं मिला, ये पाथ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बी मिला है तो हो सकता है शायद आगे 2B और मिल जाए और आपको सक्सेस मिल जाए। ओके, सो दैट्स व्हाई यू विल स्विच ऑन बी पाथ। ए पाथ से आप कहाँ स्विच करेंगे? बी पाथ पे। और बी पाथ पे कहाँ स्विच करेंगे? चूंकि एक ही बी मिला है अभी आपको, तो दैट्स व्हाई यू विल स्विच ऑन 1B। इज इट? अब सपोज मैं एज्यूम करता हूँ 2A पहुंच चुका था, मुझे बी ना मिल करके ए ही मिला, तो मैं सक्सेस पे पहुंच गया। सक्सेस पे पहुंच गया तो आगे कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट? तो अब आप देखिए यहाँ इस स्टेट का ए और बी दोनों कंप्लीट है, इस स्टेट का 1A का ए भी कंप्लीट है, बी भी कंप्लीट है, इस 2A स्टेट का ए भी कंप्लीट है, 1B ए बी भी कंप्लीट है। ठीक है, इस फाइनल स्टेट का ए और बी दोनों मौजूद हैं। अब आते हैं इधर की तरफ, 1B, इसका बी तो कंप्लीट है, लेकिन अगर ए मिला यहाँ पे तो कहाँ जाएंगे? इस 1B पे होने का मतलब क्या है? रिसेंटली आपको एक बी मिला है, चाहे इधर से मिला हो चाहे इधर से मिला हो, यानी कि आप बी वाला पाथ फॉलो कर रहे थे। अब अगर एक और बी मिलता तो सक्सेस पे जाते, सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ते। इज इट? लेकिन अब बी में नहीं मिला, ए मिला, तो सक्सेस पाथ पे तो आगे बढ़ नहीं सकते, इस पाथ को तो छोड़ना पड़ेगा। ओके, लेकिन एक ए मिला है तो कहाँ जा सकते हैं? ए वाले सक्सेस पाथ पर मूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको पुराना वाला बी तो बेकार हो गया, चाहे वो इधर से आए थे चाहे इधर से आए थे। इज इट? ये पुराना वाला बी बेकार हो गया, रिसेंटली आपने एक ए रीड किया है, फर्दर 2A और मिल जाए तो सक्सेस मिल सकती है। इज इट? सो यू विल मूव टू 1A। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस सर। ओके, इसी तरह से अब मैं एज्यूम करता हूं कि 1B पे था मैं, चाहे अब मैं इधर से बी होकर गया था। अब आप देखिए ए बी मल्टीपल टाइम्स में मूव करता गया, बट अल्टीमेटली लास्ट में एक बी रीड किया और कहाँ पे पहुंच गया? 1B पे। इज इट? तो इस बी पे पहुंचने के मल्टीपल मेथड्स हो गए अब। ठीक है, तो यानी कि जब तक कि मुझे कंटिन्यूस ए नहीं मिल रहा है, मैं यहीं पे मूव कर रहा हूँ। अगर कंटिन्यूस ए मिलेंगे तभी आगे बढ़ूंगा, इसी तरह से कंटिन्यूस बी मिलेंगे तभी आगे बढ़ूंगा, वरना यही मूव करते रहेंगे। ओके, सो अब मैं यहाँ पे हूँ, यानी कि एक बी मुझे मिला है, चाहे मैं इधर से आया चाहे मैं इधर से आया। अब अगला बी मिला मुझे तो मैं इस पे पहुंच गया, यानी कि इस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई? 2B। इज इट? तो यानी कि दो कंसेक्यूटिव बी मुझे मिल गए, चाहे वो पहला बी यहाँ से मिला हो और फिर यहाँ से मिला हो, चाहे पहला बी यहाँ से मिला हो और फिर यहाँ से मिला हो। यस सर, ये 2A 1B के साथ लूप करेगा क्या? लूप कहाँ पे है? नहीं, ये 2A 1B के साथ जो ऐड हुआ है सर। हाँ, तो ये तो इसलिए हुआ ना क्योंकि 2A के बाद 2A कंसेक्यूटिव मिले तो आप यहाँ पहुंच गए, लेकिन उसके बाद अगर तीसरा ए मिलता तो सक्सेस पे पहुंच जाते, लेकिन सक्सेस पे पहुंचने से पहले ही जो है बी आ गया। अब बी आते ही ए वाला पाथ, जो पहले 2A आए थे वो तो बेकार हो गए ना, दे विल नॉट कंट्रीब्यूट। पहले जो 2A आए थे वो तो बेकार हो गए, अब बी वाला पाथ आप फॉलो करेंगे तो अब बी तो एक ही आया आपके पास। इज इट? सो दैट्स व्हाई यू विल मूव एट 1B। कि रिसेंटली आपने एक बी रीड किया, अगर फर्दर 2B और मिल गए तो आप सक्सेस पे पहुंच सकते हैं। सो दैट्स व्हाई यू हैव कम टू 1B। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ वी आर एट 2B। ओके, 2B से अगर एक तीसरा बी मिला तो मैं सक्सेस पे पहुंच जाऊंगा। इज इट? मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? सक्सेस पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर बी मिलने से पहले ए आया तो कहाँ जाना चाहिए मुझे? 1A। 1A। यस, आई शुड मूव 1A। क्यों? क्योंकि ये दोनों बी जो इस यहाँ तक आए थे दोनों बी बेकार हो गए। तीसरा बी मिल जाता तो सक्सेस पे पहुंच जाता, लेकिन उसके मिलने से पहले ही मुझे ए मिल गया, तो पिछले दोनों बी बेकार हो गए। अब एक ए है मेरे पास, फर्दर 2A और मिल जाए तो मुझे सक्सेस मिल सकती है। दैट्स व्हाई आई विल मूव टू 1A। तो आप देखिए इस 1B का भी बी पर भी है, ए पर भी है, इस 2B का बी पर भी है, ए पर भी है, इस लास्ट वाली स्टेट का ए और बी दोनों पे है। तो मेरे सारे ट्रांजिशंस कंप्लीट हो गए। इज इट और नॉट? सारे ट्रांजिशन कंप्लीट हो गए। सो माई FA इज कंप्लीट, माई FA इज कंप्लीट। इज इट ओके? So now you can understand that this FA will represent the language which is containing either a AAA or BBB। अब अगर एक बात ध्यान से देखिए, अगर ये FA मैं आपको बना करके देता तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, आप एनालाइज भी नहीं कर पाते कि क्या लैंग्वेज ये एक्सेप्ट कर रहा है। बट नाउ अगर अब आप इस FA को देखेंगे आपको दिखाई दे रहा होगा, यस ये FA AAA
या ट्रिपल बी कंटेन करने वाले सारे वर्ड्स को एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि यू हैव सीन हाउ वी हैव मेड इट। एक बार आप जिस एफए का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, उसको अगर आपको पूरा बना बनाया एफए मिल जाए, देन उसको एनालाइज करना आपके लिए आसान हो जाता है। सो दैट्स वाई डिजाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनालाइजिंग ऑल्सो। अगर आपको एफए दिया जाए और एनालाइज करने के लिए कहा जाए तो एनालाइजिंग की पावर आपकी तभी इंप्रूव होगी जब आपकी डिजाइनिंग की पावर बेटर होगी। आप जितने ज्यादा एफएस डिजाइन करेंगे उतना ही आसानी से आप एफएस को एनालाइज भी कर पाएंगे। इज इट? सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Okay. Yes, sir. Now I am making a change to this FA. Okay, I am again drawing this FA. Okay, start state minus A and A. This is the final state. और फाइनल स्टेट के मेरे ट्रांजिशन क्या है? A, B. दूसरा पाथ में डिजाइन कर रहा हूं B and B. उसके बाद on B I will move here, on A I will move here. From this on A I will move here, and this from B I will move here. Is it? So it is almost the upper design. बट केवल चेंज किया, यहां मेरे पास दो अलग अलग फाइनल स्टेट थी, यहां मैंने क्या किया, इन दोनों फाइनल स्टेट्स को मर्ज करके एक सिंगल फाइनल स्टेट बना दिया है। सो दिस एफए विल आल्सो वर्क और नॉट? जस्ट लुक, अगर आपका ट्रिपल ए आ रहा है तो 3 कंसेक्यूटिव ए जहां भी आपको मिलेंगे आप इस फाइनल स्टेट पे पहुंचेंगे एंड देन यू आर नॉट गोइंग टू लीव दिस स्टेट। या आपको ट्रिपल बी मिल गए, आपने इस पाथ को फॉलो किया और आप यहां पहुंचे, उसके बाद आगे कुछ भी आए, यू आर नॉट गोइंग टू लीव दिस स्टेट, सो योर वर्ड्स विल गेट एक्सेप्टेड। सो दिस इज एन example where these two final states can be merged, can be shared. Okay, it is not necessary that in each and every case final states will get shared. This you will learn by the experience. At some places you can share the final states or share some states, at some places you cannot. Okay, यहाँ मैंने क्यों शेयर किया? क्योंकि इस स्टेट के और इस स्टेट के दोनों के जो ट्रांजिशंस थे वो एग्जैक्टली सेम थे। इसका क्या था कि अगर मैं इस स्टेट पे पहुंच गया, उसके ए और बी दोनों पे सेल्फ लूप था, यहाँ भी ए और बी दोनों पे सेल्फ लूप था। अगर किन्हीं दो स्टेट्स के सारे ट्रांजिशन सिमिलर हैं, सारे ट्रांजिशंस सेम हैं, तो वो दोनों स्टेट्स क्या है, एक तरह से डुप्लीकेट स्टेट्स हैं, उनको शेयर करके आप एक सिंगल स्टेट बना सकते हैं। नॉर्मली आई विल नॉट एडवाइज यू टू डू दिस। वाई? क्योंकि अभी आप लोग एक्सपीरियंस नहीं है। एट सम प्लेस अगर आपने कहीं गलती की तो आपका क्या होगा, डिजाइन गलत हो सकता है इसकी वजह से। ओके, ये जो शेयरिंग ऑफ स्टेट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। whenever we look at the designs, whenever we look at the designs, तो मान लीजिए एक लैंग्वेज के लिए किसी स्टूडेंट ए ने डिज़ाइन बनाया 2 स्टेट के साथ, किसी दूसरे स्टूडेंट ने 3 स्टेट के साथ डिज़ाइन बनाया, किसी और स्टूडेंट ने सपोज 4 स्टेट के साथ डिज़ाइन बनाया, तो कौन सा डिज़ाइन बेटर होगा? ऑब्वियसली जिसने 2 स्टेट के साथ डिज़ाइन बनाया है वो डिज़ाइन बेटर होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑप्टिमाइज्ड डिज़ाइन है, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज्ड डिज़ाइन है। नॉर्मली जब भी हम कुछ डिज़ाइन करते हैं, कोई भी मशीन डिज़ाइन करें, कुछ भी आप डिज़ाइन करें, तो जितने कम रिसोर्सेज आप यूज़ करेंगे, यहाँ स्टेट क्या है आपकी, स्टेट आर नथिंग बट दीज आर द रिसोर्सेज, और अगर आपके एफए में स्टेट ज़्यादा है तो आपके एफए में नंबर ऑफ ट्रांजिशंस भी ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजिशंस नंबर ऑफ स्टेट्स पर डिपेंड करते हैं। किसी भी एफए में कितने ट्रांजिशन होते हैं? नंबर ऑफ स्टेट्स मल्टीप्लाइड बाय द इनपुट अल्फाबेट लेटर। अब इनपुट अल्फाबेट लेटर तो फिक्स्ड है, जैसे इस पर्टिकुलर एफए की अगर बात करें तो इनपुट अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं आपके? 2। अब अगर 2 स्टेट हैं तो टोटल 4 ट्रांजिशन होंगे, अगर 3 स्टेट हैं तो टोटल 6 ट्रांजिशन होंगे, अगर 4 स्टेट हैं तो टोटल 8 ट्रांजिशन होंगे। यानी कि अगर आप ज़्यादा स्टेट यूज़ कर रहे हैं तो ट्रांजिशंस भी ज़्यादा होंगे, यानी कि आप सारे रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि आपका डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा कम स्टेट से बना हुआ डिज़ाइन है। ओके, बट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको डिज़ाइन की कॉम्पैक्टनेस या डिज़ाइन की क्वालिटी पे नहीं जाना है। ओके, डिज़ाइन की क्वालिटी पर नहीं जाना है। यू ओनली
have to check whether your functionality is correct or not. At this point of time, the important thing for us is the functionality. कि जो language हमें कही गई है, we are able to make a correct design for that language, no matter how many states we are using. Is it okay? No matter how many states are using, only we should check that functionality is correct. Okay, but even then unnecessary states बनाना भी जो है फायदा नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जितनी आपकी states ज़्यादा होंगी उतने आपके ट्रांजिशन ज़्यादा होंगे, और जितने आपके ट्रांजिशंस ज़्यादा होंगे उतना ही आपका डिज़ाइन कॉम्प्लिकेट करता चला जाएगा, आपको खुद को भी समझने में दिक्कत होगी. तो कोशिश करिए कि जो लॉजिकल स्टेट्स हैं केवल वही लॉजिकल स्टेट्स बने आपकी. सो दीज आर जनरल गाइडलाइंस. ओके, मैंने फिर आपसे कहा कि आप कुछ भी करिए, कितने भी स्टेट्स यूज़ करिए, कितने भी ट्रांजिशन यूज़ करिए, अगर आपकी फंक्शनैलिटी करेक्ट है तो आपका एफ ए करेक्ट है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जामिनेशन में. इज इट? नो मैटर, वी विल नॉट लुक एट द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन. Will not look at the quality of design. Quality of design is a separate topic that we will be covering later on. Okay, so यानी कि मैंने आपको यहाँ जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि ये दो स्टेट आपकी शेयर होकर के सिंगल स्टेट यहाँ बन सकती थी, क्योंकि इनके सारे ट्रांजिशंस सिमिलर हैं. Okay, with the experience you will learn to know, you will learn that where it can be shared and where it is not. Yes, somebody is saying something. सर दूसरी क्लास शुरू होगी सर. Okay, okay, अच्छा टाइम हो गया. Okay, sorry. So I am closing my lecture at this point of time. Okay, we will continue our discussion with some more examples. Okay, so from my side, most of the concepts I have given you. Okay, so just I am. You can, I am taking the attendance, you can leave the class. Okay, thank you all. Now you can leave the class. Thank you, sir.